everyone, welcome back to my channel. So, in today's lecture, we are going to study about early Indian journalism and contribution of James Augustus Hickey. Now, we all know that James Augustus Hickey is the pioneer who introduced the first newspaper in India basically, which was Bengal Gazette. In 1780, he introduced the newspaper. So, in that time period, the first newspaper arrived in India and we got to introduced with those particular things. But उससे पहले the time before his arrival, the time before he introduced such a newspaper, what was the condition or kind of status of Indian journalism at that time? अगर हम उस चीज़ को study करें तो उस टाइम पे journalism कैसे थे? Now when I am saying journalism, I am not talking about newspaper only, right? When I'm talking about journalism, I'm not only talking about newspaper. तो उस टाइम पे जर्नलिज्म का क्या हाल था? What do we mean by journalism? First we need to understand that before we go through all the chapter. ठीक है, तो जर्नलिज्म इज द प्रैक्टिस ऑफ गैदरिंग, असेसिंग, क्रिएटिंग, प्रेजेंटिंग ऑफ न्यूज़ एंड इन्फॉर्मेशन टू द पब्लिक. नाउ एक चीज़ बहुत ध्यान से सुनो. इफ़ यू रिमेंबर, लाइक हम सब ने वो स्टोरीज तो देखी होंगी. एक ऐसा फिल्म या ऐसी स्टोरी या मूवीज़ में हमने कई बार देखा होगा क्या होता है. तो कई मूवीज़ में हमने देखा है कि राजा महाराजा या नवाबों को इफ़ दे यूज टू इंट्रोड्यूस अ पर्टिकुलर न्यूज़, इफ़ दे यूज टू अनाउंस अ पर्टिकुलर न्यूज़, व्हाट दे यूज टू डू, they used to send a messenger, and then the job of the messenger was to announce that particular news to the entire town hall or to the entire villagers, right? एक center of the village आता है वो, जिससे सारे villagers को access होना ईजी हो, सारे विलेजर्स तक वो अनाउंसमेंट जाए. एंड फिर तो विलेजर्स ऑल्सो यूज टू प्ले अ रोल ऑफ कम्युनिकेटर. एक विलेजर को पता होगा तो कानाफूसी होके वही विलेजर दूसरे विलेजर, फिर वो तीसरे विलेजर, ऐसे टाइप के न्यूज़ कंडक्ट करता था. पर्टिकुलर मैसेज यहाँ पे सेंडर टू रिसीवर पहुँच रहा है, बात वही हो रही, कम्युनिकेशन हो रहा है. ठीक है, तो जर्नलिज्म का रोल यहाँ पे क्या है, किस टाइप से? जर्नलिज्म इज द वे टू कंडक्ट दैट कम्युनिकेशन. यू कैन से इन एनालॉजी, इन एनालॉजिकल वे यू कैन से दैट जर्नलिज्म इज द method of conducting that communication between the sender and the receiver. So it is the practice of gathering, assessing, creating and presenting that news and information to the public. Word journalism is derived from a word journal, which means daily register or a diary. जर्नल से जर्नलिज्म आया. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक डेफिनेशन दिया है जर्नलिज्म का, एक स्कॉलर का मैंने डेफिनेशन दिया है टू इम्प्रूव द आंसर राइटिंग फॉर्मेट. ठीक है, बॉन्ड एफ फेजर, ही इज अ स्कॉलर who defined journalism as the term journalism embraces all the forms in which and through which the news and the comments on the news reach the public. All that happens in the world, if such happenings hold interest for the public, and all the thought, action and ideas which these happenings stimulate become the basic material for the journalist, right? जो इन्फॉर्मेशन है या फिर उस न्यूज़ पे कमेंट जो चीज़ें हैं वो चीज़ें पब्लिक तक पहुंचाना इज अ वे ऑफ जर्नलिज्म. ठीक, उस चीज़ को गैदर करना, उस चीज़ को पहुंचाना पब्लिक तक जिससे कॉमन मैन भी उस चीज़ के बारे में रिकग्नाइज हो, दैट इज जर्नलिज्म. And here he also mentioned कि such happenings hold interest for the public. अब देखो, कोई भी एक न्यूज़ आप पब्लिक को बोलोगे, पब्लिक को पसंद ना भी आ सकती. कोई एक न्यूज़ जो सेंसेशन क्रिएट कर दे विद इन द पब्लिक, द माइंड्स ऑफ पब्लिक, वो पब्लिक के दिमाग के साथ, मतलब वो दिमाग में जाके ट्रिगर करे कि हाँ, दिस इज समथिंग अनयूजुअल, this is something unusual that had happened in this particular area, this event is really unusual which I have never seen in my life. So ऐसा टाइप का अगर कोई चीज़ें हो, unusual facts, unusual things, तो that is you can call news. ठीक है, तो which happenings stimulate become the basic material for the journalist. Those unusual things, unusual patterns that are happening in the world, जो चीज़ें माइंड को, पब्लिक के माइंड पे को जाके ट्रिगर करे, उसको स्टिम्युलेट करे, that are the utmost resource for a journalist. As a journalist, that is the thing, that is the resource you should come out to introduce to the public. ठीक है, अब देखो, बिगिनिंग ऑफ प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया. अब प्रिंटिंग की स्टार्ट ना 1550 या फिर 1550 से ही स्टार्ट हो गई थी. ठीक है, अब देखोगे न्यूज़पेपर जो था वो हमारा बाद में बना था, 1780 में इंट्रोड्यूस हुआ था, बट 1550 से ही हमारे यहाँ पे प्रिंटिंग बननी शुरू हो गई है.
Beginning of printing in India. Before the arrival of printed newspapers in India, people relied on more traditional and manual methods to share information. One of the earliest examples of this was the use of handwritten newsletters called हरकरास. अब एक हैंड रिटन न्यूज लेटर्स यूज किया जाता था, दैट इज उस हैंड रिटन न्यूज़पेपर्स को व्हाट वी यूज टू कॉल दैट, दोज वर नेम्ड एज हरकरास. अब हरकरास जो था ना वो बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे, मतलब हमारे ब्रिटिशर्स उसको बहुत अच्छे से यूज़ करते थे. दैट वॉज अ वे ऑफ स्प्रेडिंग द इंफॉर्मेशन और दैट वॉज अ वे ऑफ कम्युनिकेशन फॉर देम. वो न्यूज़ लेटर्स वो यूज़ करते थे और वो न्यूज़ लेटर्स क्या होता था, वो हैंड रिटन होता था. उनको हम क्या बोलते थे, हरकरास बोलते थे. The British East India Company used these newsletters to communicate important notices, announcements, and updates to their employees and officials. These harkaras acted as messengers who carried the news across different regions. कोई एक पर्टिकुलर पर्सन एज अ मैसेंजर होगा जो इन हरकराज इन न्यूज़ लेटर्स को वो लेता था. आपने देखा होगा रोल टाइप के पेपर्स दिखाते हैं हमारे मूवीज़ में, उसने उसको ओपन किया, रोल टाइप का पेपर होता है, ठीक है. थोड़ा रॉयल टाइप की एक डेपिक्शन होती है उस पर्टिकुलर न्यूज़ लेटर की, जो हैंड रिटन उसमें इंफॉर्मेशन होती है. कई हमने हिस्टोरिकल मूवीज़ देखी या फिर सीरियल्स देखी जहाँ पे इस चीज़ को डेपिक्ट किया गया है. सो यू कैन ईजिली इमेजिन दैट थिंग, ठीक है. Even before the British period, during the Mughal era, a similar practice existed where newsletters were circulated as a basic form of news sharing within the empire. These early methods, though limited in reach and slow in speed, laid the foundation for more organized news systems in India. अब obviously आप एक पर्टिकुलर मैसेंजर को भेज रहे हो, वो उस न्यूज़ को जाके कम्युनिकेट करेगा, उस अनाउंसमेंट को वो अनाउंस करेगा पूरे सिटी तक, सॉरी पूरे विलेज तक. सो ऑब्वियसली इट्स अ वेरी मैनुअल टास्क एंड इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग टास्क. आप इसको फटाफट से नहीं कर सकते, तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग टास्क है एंड इट्स अ कंप्लीट एंटायरली मैनुअल वर्क, राइट. बट at that time it was an efficient work. For that time being, it was an efficient work or an efficient way of communication, you could say. Eventually this system evolved, leading to the birth of printed press with Hickey's Bengal Gazette in 1780, which marked the beginning of modern journalism in the country, which we will look into some while later. Now let's study about arrival of the printing press in Goa 1550 to 1557. The history of the press in India began in 1550, when the Portuguese missionaries brought the first printing press to Goa. Their initial plan was to use this press for missionary work in Abyssinia, modern Ethiopia, but due to changing circumstances, the press remained in Goa. तो इनका पहला जो कौन लाया था, पोर्टुगीज मिशनरीज लाए थे प्रिंटिंग प्रेस गोवा में 1550 में, ठीक है. अब इनका इनिशियल प्लान क्या था, इनका इनिशियल प्लान ये था कि प्रेस मिशनरी बनाएंगे. कहाँ पे, प्रेस मिशनरी वर्क के लिए ये लोग इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस स्टार्ट किया. तो प्रेस मिशनरी वर्क इनका आइडिया क्या था, कहाँ पे करने का, एबिसिनिया, जो आज के टाइम में जिसको हम कहते हैं मॉडर्न इथियोपिया, ठीक है. बट ड्यू टू सम चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस द प्रेस रिमेंड इन गोवा, बट प्रेस गोवा में ही रही. Soon after, in 1557, the Jesuits of Goa published the first book in Malayalam. So पहला बुक जो था मलयालम में कब बनी थी, 1557 में. किसने बनाई थी, Jesuits of Goa, marking the beginning of printed literature in any Indian language. First printed literature की अगर बात करो वो मलयालम में बनी थी, इंडियन लैंग्वेज में. This was a crucial first step in introducing printing technology to India's rich linguistic traditions. Early printed works in Goa. The first known printed works produced by the press were largely religious and philosophical texts. अब इस जो ये प्रेस बनी, जो पोर्टुगीज लाए इस प्रेस को गोवा में, इनका जो सबसे पहला जो काम था वो बेसिकली किस पे था, जो पहले काम हो रहे थे वो था रिलीजियस एंड फिलोसॉफिकल टेक्स्ट के ऊपर इनका वर्क हो रहा था. सो जो पहला जो प्रेस था वो बेसिकली किस, जो पहले के जो टेक्स्ट वो बन रहे थे वो किस बेसिस पे हो रहा था, रिलीजियस और फिलोसॉफिकल टेक्स्ट प्रिंट किया जा रहा था. एम्ड एट स्प्रेडिंग क्रिश्चियन डॉक्ट्राइन को वो स्प्रेड करना चाह रहे थे. वन ऑफ द अर्लीस्ट वर्क्स वाज कॉन्क्लूशंस फिलोसॉफिकास, व्हिच मींस द फाइनल जजमेंट्स और डिटर्मिनेशंस रीच्ड थ्रू फिलोसॉफिकल रीजनिंग एंड argumentation, often summarizing the key points and implications of a philosophical work.
सो बेसिकली वो क्या हो रहा था, जो सबसे पहला या फिर सबसे अर्लीस्ट वर्क आप बोलो इस प्रिंटिंग प्रेस का, दैट इज कॉन्क्लूजन्स फिलोसॉफिकल, जिसका मतलब है फाइनल जजमेंट्स या फिर डिटर्मिनेशंस जो फिलोसॉफिकल रीजनिंग एंड आर्ग्यूमेंटेशन से बन के आती है, और इनके की पॉइंट्स को भी एंड इम्प्लीकेशंस को भी इन्होंने समराइज किया हुआ था. अ स्पेनियर्ड जो स्पेन से है, नेम्ड जाओ दी बस्टामेंटे प्लेड एन एसेंशियल रोल इन सेटिंग अप दिस प्रेस. अब इस प्रेस को बनाने वाला कौन था, सबसे ज़्यादा की मेजर रोल में कौन थे, एक स्पेनियार्ड थे जो जिनका नाम था जाओ दी बस्टामेंटे, एंड ही रिसीव्ड हेल्प फ्रॉम इंडियन असिस्टेंट्स की उन्होंने हेल्प से ये किया था, हाईलाइटिंग अर्ली कोलाबोरेशन बिटवीन यूरोपियंस अर्ली कोलाबोरेशंस बिटवीन यूरोपियंस एंड इंडियंस इन द वर्ल्ड ऑफ प्रिंटिंग. ये सारे आप समझ ही पा रहे होंगे पढ़ के. नाउ एक्सपेंशन ऑफ द प्रेस टू इंडियन लैंग्वेज 1578 ऑन 1550 में पहली प्रेस आई. 1557 में जेसस ऑफ गोवा ने फर्स्ट बुक इन मलयालम प्रिंट किया. तो ये टाइमलाइन याद रखना. नाउ एक्सपेंशन ऑफ द प्रेस टू इंडियन लैंग्वेजेस 1578 ऑनवर्ड्स का टाइम पीरियड. सेकंड प्रेस इन साउथ इंडिया, पहली प्रेस बनी 1550 में, अब सेकंड प्रेस भी बनी. पहले कहाँ बनी, सेकंड प्रेस कहाँ पे बनी इस बार, तिरुनेलवेली साउथ इंडिया में 1578 को. एज प्रिंटिंग प्रेस बिगैन टू एक्सपैंड विद इन इंडिया, अ सेकंड प्रेस वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1578 एट तिरुनेलवेली इन तमिलनाडु बाय क्रिश्चियन मिशनरीज. अब इसको किसने बनाया, इसको बनाया आपके क्रिश्चियन मिशनरीज ने. This press focused on printing religious materials in local languages. Now, main focus of this particular press was printing textbook, printing religious materials, and in which language they preferred the local languages for this purpose. Further promoting the spread of literacy and religious education through printed text. The main motive was to spread religious education. And what was the religious education they were introducing at that time? Christian doctrine they were spreading. By this time, आई थिंक आपको ये चीज़ क्लियर होना चाहिए कि अब तक जितनी भी बुक्स उन्होंने प्रिंट किए, एवरीथिंग वाज बेसिकली रिलेटेड टू रिलीजियस एंड फिलोसॉफिकल टेक्स्ट, एंड देयर मेन मोटो वाज टू स्प्रेड द रिलीजियस नॉलेज टू द कॉमन मैन, टू द कॉमन पब्लिक. फर्स्ट तमिल बुक प्रिंटेड इन इंडिया, क्विलॉन 1578. क्विलॉन को हम अभी इस टाइम पे कोल्लम कहते हैं, ठीक है. तो 1578 में क्या हुआ, पहली तमिल बुक बनी इंडिया की. A significant milestone was achieved in 1578, which is the Tamil book. कहाँ बना, हेनरिक हेनरिक्स करके एक प्रेस था, एक पोर्टुगीज मिशनरी, हेनरिक हेनरिक्स करके एक पोर्टुगीज मिशनरी प्रिंटेड द फर्स्ट तमिल बुक इन इंडिया एट क्विलॉन, जिसको हम कोल्लाम कहते हैं. दिस बुक वॉज टाइटल थाम्बिरान वनक्कम. थाम्बिरान वनक्कम was the title of this book, which translates to, इसका मतलब क्या था इस पर्टिकुलर वर्ड का, थाम्बिरान वनक्कम का, लॉर्ड्स ग्रीटिंग्स और रेवरेंस टू द लॉर्ड. ठीक है, इसका ट्रांसलेशन ये होता है. दिस वर्क वॉज अ तमिल ट्रांसलेशन ऑफ द पोर्टुगीज बुक डॉक्ट्रिना क्रिश्चियम, मीनिंग क्रिश्चियन डॉक्ट्राइन इन लैटिन. अब ये जो बुक थी थाम्बिरान वनक्कम, ये बेसिकली ट्रांसलेशन था एक पोर्टुगीज बुक का. उस बुक का क्या नाम था, पोर्टुगीज बुक का नाम था डॉक्ट्रिना डॉक्ट्रिना क्रिश्चियन, जिसका मतलब होता है क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन इन लैटिन. द बुक फोकस्ड ऑन इंट्रोड्यूसिंग फंडामेंटल क्रिश्चियन बिलीव्स टू तमिल स्पीकिंग पीपल. Although an earlier Tamil book had been printed in Lisbon, इससे पहले भी लिस्बॉन 1554 में लिस्बॉन में एक तमिल बुक प्रिंट हुई थी, बट ये पहली ऐसी बुक थी जो इंडिया में प्रिंट हुई है. ठीक है, इट यूज द रोमानाइज्ड स्क्रिप्ट, रोमन स्क्रिप्ट का यूज़ किया गया था उस पर्टिकुलर तमिल बुक में जो 1554 में लिस्बॉन में प्रिंट की गई थी. इन कॉन्ट्रास्ट थाम्बिरान वनक्कम was the first book printed on Indian soil in authentic Tamil script. This event is considered a landmark moment in Indian language printing. Developments of types of for Indian language. Types means जो टाइप फेसेस जो प्रिंट के लिए यूज होते हैं, बेसिकली उनकी बात की गई है. फॉलोइंग दिस 1578 ऑनवर्ड्स हम पढ़ रहे. इन 1579 टाइप्स फॉर तमिल एंड मलयालम स्क्रिप्ट्स वर डेवलप्ड. जो कौन सी स्क्रिप्ट्स के लिए बन गई थी आपकी, तमिल और मलयालम स्क्रिप्ट्स के लिए, विच हेल्थ स्ट्रेंथ वर्नाक्यूलर प्रिंटिंग इन इंडिया. नाउ वर्नाक्यूलर इज योर ओन लैंग्वेज. इंडियन लैंग्वेजेस को वर्नाक्यूलर लैंग्वेज बोला जा रहा है. आप आगे चल के हिस्ट्री में पढ़ोगे वर्नाक्यूलर प्रेस का भी एक टाइम पीरियड था. ठीक है, डिस्पाइट दिस प्रोग्रेस चैलेंजेस रिमेन्ड इन एडिप्टिंग कॉम्प्लेक्स इंडियन स्क्रिप्ट्स लाइक देवनागरी एंड तमिल इनटू मूवेबल टाइप फॉर्मेट्स.
बट देवनागरी एंड तमिल के जो टाइप फॉर्मेट्स थे उनके लिए चैलेंजेस तब भी बनी हुई थी. हाउएवर दीज अर्ली एफर्ट्स पेव द वे फॉर रिलीजियस लिटरेचर इंडियन लैंग्वेज सच एज कोंकणी मराठी एंड तमिल विच बिकेम विद वाइड स्प्रेड टूल्स फॉर मिशनरी वर्क. बट उस टाइम तक क्या हुआ था, जो रिलीजियस लिटरेचर था, कौन कौन से लैंग्वेज में रिलीजियस लिटरेचर उस टाइम तक बननी शुरू हो गई थी, प्रिंट होनी शुरू हो गई थी, कोंकणी मराठी तमिल लैंग्वेज में, जो कि बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड टूल्स बनी मिशनरी वर्क के लिए. चैलेंजेस इन इंडियन लैंग्वेज प्रिंटिंग, एक तो हमने तभी देखा टाइप फेसेस में उनको प्रॉब्लम हो रहा था कौन कौन से देवनागरी स्क्रिप्ट के लिए. ठीक है. The main difficulty during this period in creating suitable typefaces for Indian scripts, many of which were visually complex compared to the Roman alphabet. अब रोमन अल्फ़ाबेट ज़्यादा ईजियर है एज पर द इंडियन स्क्रिप्ट्स की अगर आप बात करो. ठीक है. तो इस चीज़ में एक उनको चैलेंज फेस हो रहा था उस टाइम पे. नेवरदलेस रिलीजियस लिटरेचर रिमेन द प्राइमरी फोकस ऑफ दीज अर्ली प्रिंटिंग एफर्ट्स, स्पेशली एज यूरोपियन मिशनरी सॉट टू रीच इंडियन कम्युनिटीज इन देयर नेटिव लैंग्वेजेस. अब जो यूरोपियन पीपल उस टाइम पे आए थे, यूरोपियन मिशनरीज जो उस टाइम पे आए थे, उनका मेन मोटो ये था कि उनके रिलीजियस प्रीच को वो, या उनके रिलीजियस बिलीव्स या उनके रिलीजियस नॉलेज को वो एक टाइप से स्प्रेड करे इंडियन पीपल तक. अब उनके लिए एक ही तरीका था इस चीज़ को करने के लिए कि इंडिया की जो नेटिव लैंग्वेजेस है उस लैंग्वेज के माध्यम से वो उन रिलीजियस बिलीव्स या उनके आइडियोलॉजीज को वो इंडियन तक पहुंचाए. सो दैट वाज अ डिफिकल्ट टास्क बिकॉज इंडियन की जो स्क्रिप्ट है दैट इज डिफिकल्ट. तो वही चीज़ें इनको उस टाइम पे जो थी एज अ चैलेंज फेस करनी पड़ रही थी. बिगिनिंग ऑफ न्यूज़पेपर्स इन इंडिया 1780 ऑनवर्ड. ना हेयर इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक केम, ये चीज़ आप याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये. सो बिगनिंग ऑफ न्यूज़पेपर्स इन इंडिया 1780 ऑनवर्ड्स की अगर हम बात करें तो न्यूज़पेपर जेम्स ऑगस्टस हिकी से पहले भी एक पर्सन थे जिन्होंने न्यूज़पेपर की पहली स्टार्टिंग की थी. कौन थे वो? विलियम बोल्स. ये चीज़ याद रखना, विलियम बोल्स ट्राइड द फर्स्ट अटेम्प्ट टू स्टार्ट अ न्यूज़पेपर इन कैलकाटा इन 1770. नाउ जेम्स हिकी का जो न्यूज़पेपर आया था वो 1780 में आया था एंड जेम्स हिकी अराइव्ड इन इंडिया इन 1776. एट दैट टाइम इन 1776 विलियम बोल्स वाज अ पर्सन who tried the first attempt to start a newspaper in Calcutta in 1776, but his efforts to publish newspaper were not approved by the East India Company. अब उस टाइम पे सारे अप्रूवल ब्रिटिशर्स से लेने पड़ते थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी. तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस चीज़ को अप्रूव नहीं किया था, जिस वजह से इनका न्यूज़पेपर नहीं बना था. बट इनका जो पहला न्यूज़पेपर का अटेम्प्ट था वो विलियम बॉल्स ने दिया था कैलकाटा में पहला न्यूज़पेपर इंट्रोड्यूस करने का, which year 1776. Now, James Augustus Hickey and Bengal Gazette, 1780 to 1782. The true beginnings of journalism in India came later with James Augustus Hickey, an Irishman. James Augustus Hickey was an Irishman. In 1776, Hickey arrived in Calcutta. वो कैलकाटा में आए, नाउ कोलकाता, जिसको हम कोलकाता कहते हैं अभी, intending to start a shipping business, which ultimately failed. उनका मेन मकसद क्या था? एक शिपिंग बिजनेस स्टार्ट करने का, but which was failed by then. During his imprisonment for debt, Hickey learned about printing technology. अब उस टाइम पे उनके पास बहुत ज़्यादा कर्जा था, तो जिस टाइम पे वो कर्जे के लिए जब जेल गए थे, उनके imprisonment के टाइम पे उन्होंने स्टार्ट किया था, मतलब ट्राई किया था. He was learning at the time about the printing technology. प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी कैसे वर्क करती है. He started a printing press called Honorable Company. अब यहाँ पे started की स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे एक आर आएगा. ठीक है. He started a printing press called Honorable Company. उनके printing press का क्या नाम था? Honorable Company. And on January 29, 1780 को he launched India's first English newspaper, the Bengal Gazette, और Calcutta General Advertiser. Calcutta General Advertiser was the other name for this newspaper. This weekly newspaper quickly became known for its bold tone and fearless journalism. Why we are saying this? At that time, Hickey used a very provocative tone to communicate his message to the public. ठीक है, he used a very provocative or sarcastic tone to communicate his message, right? तो बहुत ज़्यादा बोल्ड एंड फियरलेस जर्नलिज्म की शुरुआत हुई थी उनके इस न्यूज़पेपर के थ्रू, बिकॉज ही ओपनली क्रिटिसाइज्ड द गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स, एंड उस टाइम के जो चीफ जस्टिस थे एलिजा इम्फे, उनको उन्होंने ओपनली क्रिटिसाइज किया था फॉर देयर वर्क, दैट द वर्क दे आर डूइंग इज नॉट अ फेयर वन. सो क्या हो रहा था? तो उस टाइम पे एक बहुत ज़्यादा सेंसेशनलिज्म का टाइम था, येलो जर्नलिज्म का टाइम आ गया था हिकी के टाइम पीरियड के टाइम पे, बिकॉज ही वॉज ओपनली क्रिटिसाइजिंग दी
गवर्नर जनरल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। वो हम पढ़ रहे हैं आगे। हमने पढ़ लिया। अब यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, दिस यूज टू बी अ वीकली न्यूज़पेपर, और ये हर सैटरडे को पब्लिश होती थी। ₹1 का आता था ये न्यूज़पेपर। एंड ये इनकी जो पहली शुरुआत थी, इनका जो पहली कॉपी बनी, उसी में 400 कॉपीज जो थी बन गई थी। The price of the newspaper was ₹1 and the circulation went on to 400 copies. This was a weekly newspaper used to be published on Saturday and which also had letter to editor column. इसका एक letter to editor column भी था. Hickey openly criticized British officials, especially Governor General Warren Hastings and Chief Justice Elijah Impey. He refused to accept bribes and upheld his slogan. उनका जो स्लोगन था वो क्या था? वो था open to all parties but influenced by none. वो सारे पार्टीज के लिए ओपन है बट किसी से वो इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं. दैट इज द करेज, दैट इज वाई ही गॉट दैट पर्टिकुलर करेज टू ओपनली क्रिटिसाइज द गवर्नर जनरल एट दैट टाइम, द गवर्नर जनरल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी. सो अ वेरी fearless journalism was introduced at that time during his era. So the motto of this newspaper would be report objectively and impartially the affairs of the country. Objectivity होनी चाहिए, impartiality होगी. कि ऐसा नहीं है कि उस टाइम पे क्या हो रहा था कि सेंसरशिप लगाया जा रहा था, जो कि हिक्की के न्यूज़पेपर में भी सेंसरशिप इंट्रोड्यूस किया था गवर्नर जनरल ने. एंड इवन इनके न्यूज़पेपर के अगेंस्ट एक राइवल न्यूज़पेपर भी इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था. वो हम पढ़ रहे आगे चल के. बट सेंसरशिप लागू कर रही थी. मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट आप कुछ भी लिखोगे, they will not accept that, they will not approve that, they will put censorship, they will censure your particular press, your particular news, and eventually your newspaper, your press would get shut down. और यही हुआ था हिकी के टाइम पे. मतलब 2 साल बाद 1782 में इट गॉट शट डाउन. वो भी हम पढ़ रहे हैं आगे चल के. तो जो भी चीज़ आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ भी बोलना उस टाइम पे अलाउड नहीं था. आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं जा सकते. इवन हिकी वॉज क्रिटिसाइज्ड इन मैनी वेज कि जो ब्रिटिशर होकर हिकी himself was a Britisher. तो he was a Britisher and being a Britisher he was commenting on other Britishers or criticizing the other Britishers, the work of the Britishers, the work of the East India Company at that time. सो ये चीज़ के बारे में उनको तरह तरह के कमेंट्स और तरह तरह की क्रिटिसिज्म, ये सारी चीज़ें उनको सुननी पड़ी थी. ठीक है. द मोटो ऑफ दिस न्यूज़पेपर वाज ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए एंड इम्पार्शियलिटी होगी कि हम जो है, जो भी अफेयर्स हो रही है कंट्री में, जो भी चीज़ें, जो भी घटनाएं हो रही है, उनका मतलब ये था कि एक पर्टिकुलर न्यूज़ कहीं पे होना चाहिए जिस वजह से पीपल जो है वो रिलायबल फील करे कि हाँ उनके पास एक ट्रूथ फैक्ट है, कि उनको सच्ची घटनाओं की खबर दी जा रही है. तो दैट इज़ द बेसिक मोटो ऑफ दिस न्यूज़पेपर, कि उनको सच का पता चले पीपल को. ठीक है. ही रिफ्यूज टू पे ब्राइब टू वॉरेन हेस्टिंग्स वाइफ. Now the same year in November 1780 में क्या हुआ? द ईस्ट इंडिया कंपनी सपोर्टेड पब्लिशिंग अ राइवल पेपर. उन्हीं के अगेंस्ट एक राइवल पेपर उन्होंने पब्लिश किया जिसका नाम था इंडिया गैजेट. और इनके एडिटर कौन थे? बी मैसिंग एंड पीटर रेड. ठीक है. हिकी, यहाँ पे हिकी होगा, माई मिस्टेक, दिस शुड बी हिकी. Sir Hickey raised his voice against corruption by Governor General's council members, including Chief Justice Elijah Humphrey. मतलब गवर्नर जनरल के जो काउंसिल मेंबर्स थे वो जो काइंड ऑफ करप्शन कर रहे थे उस टाइम पे. इवन इसमें कौन शामिल था उस टाइम पे? जो आपके जो चीफ जस्टिस एलिजा इम्पे था वो भी इसमें शामिल था. एलिजा इम्पे, यहाँ पे इम्पे होगा. ठीक है. तो इनके अगेंस्ट उन्होंने क्रिटिसाइज किया था इस चीज़ को. ओपनली उन्होंने इस पर्टिकुलर चीज़ को उन्होंने वॉइस आउट किया था, रेज हिज वॉइस. हिज न्यूज़पेपर रिपोर्टेड ऑन पॉलिटिक्स, वर्ल्ड अफेयर्स, लोकल इश्यूज एंड वेलकम लेटर्स एंड पोएम्स फ्रॉम द पब्लिक, एनकरेजिंग रीडर पार्टिसिपेशन. ये सारी की सारी चीज़ें ये करते थे. आपको समझ आ ही गया होगा. द न्यूज़पेपर हैड अ सार्कास्टिक एंड प्रोवोकेटिव राइटिंग स्टाइल, जो किसी को भी प्रोवोक कर दे, ऐसा टोन उनका था राइटिंग का. वाइल स्टार्टिंग द न्यूज़पेपर ही की प्रॉमिस दैट नथिंग विल बी इंसर्टेड अनऑथेंटिकेटेड. कुछ भी अनऑथेंटिकेटेड कोई भी चीज़ यहाँ पे नहीं डाली जाएगी इस न्यूज़पेपर में. एंड दैट हिज न्यूज़पेपर वुड हैव अ रिजिड अडहेरेंस टू ट्रुथ एंड फैक्ट्स. दैट his newspaper is abide by the law of truth and facts. That is the basic ideology of his newspaper, right? He targeted the Governor General Warren Hastings and accused him of maladministration. He was doing that maladministration, those corruptions that was occurring at that era. So he openly criticized that thing. For that he was jailed and arrested for printing what they call libel, false or harmful statements, but ran his paper from the jail. अब ये जो है ना, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जानना कि इस वजह से इनको
जेल कर दिया गया था। और इन पे क्या टैग लगा दिया गया था, इनको बोला गया था ही इज पब्लिशिंग, ही इज राइटिंग लाइबल। एट दैट टाइम लाइबल यूज टू बी रेफर्ड एज फॉल्स और हार्मफुल स्टेटमेंट्स। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट के अगेंस्ट आप कुछ भी बोलोगे फॉल्स या हार्मफुल स्टेटमेंट, उसको लाइबल बोला जाता है। तो इनको ये चीज़ बताया गया था कि आपने लाइबल वर्ड्स यूज़ किया, आपने लाइबल किया है, जिस वजह से आपको अरेस्ट किया जा रहा है। दैट इज़ द थिंग। सो बट वो जेल करने के बाद भी वो जेल में बैठकर ही वो अपने पेपर को जो है प्रिंट कर रहे थे। However, his fearless attitude led to conflicts with colonial authorities, and after facing lawsuits and imprisonment, Hickey's Bengal Gazette was forced to shut down in March 1782. There was a lot of censorship that had occurred. उनके प्रेस को सेंसरशिप लगा दिया गया था, उनके प्रेस में सेंसरशिप लगा दिया गया था। उसके बाद उनकी 1782 में, मार्च 1782 में जो बंगाल गैजेट था वो शट डाउन हो गया। Despite its short life, Hickey's venture is remembered as the birth of journalism in India, setting the tone for the press as a platform for truth and dissent. Limitations क्या थी हिकीज की वर्क की? कुछ limitations देखते। Even though Hickey was brave, his newspaper had some problems. Sometimes his writings were too personal or harsh. Obviously, he was openly criticizing the Governor General. Obviously, उनकी जो writings थी वो थोड़ी harsh थी बहुत ज़्यादा, and बहुत ज़्यादा personal way में वो उस चीज़ को लिख रहे थे। ही डिड नॉट इंक्लूड इंडियन वॉइसेज और लोकल, एंड उस टाइम पे ना इंग्लिश न्यूज़पेपर ही था। उन्होंने जो प्रिंटिंग, मतलब उन्होंने जो न्यूज़पेपर स्टार्ट किया दैट वाज इंटायरली इंग्लिश। एंड एट दैट टाइम अगर आपको पब्लिक वो चाह रहे थे कि पोअम्स एंड लेटर टू एडिटर का भी कॉलम उन्होंने रखा था कि लोग वहाँ पे कुछ रीच आउट करेंगे। बट ऑब्वियसली उस टाइम पे वो चीज़ें वो तभी रीच आउट कर सकते, वही पीपल रीच आउट कर सकते, दैट कम्युनिटी ऑफ पीपल कैन रीच आउट टू हिम हु knew English at that time, who had a knowledge of English during that time, right? तो बट जिनको नॉलेज नहीं थी, जो नेटिव थे प्रॉपरली, उनको उनकी ही भाषा आती थी, इंडियन लैंग्वेजेस की ही नॉलेज थी, वो उस चीज़ को रीच आउट नहीं कर पा रहे। तो वर्नाक्यूलैरिटी की जो थी, वर्नाक्यूलैरिटी ऑफ दैट प्रेस एट दैट टाइम, उस चीज़ की बहुत ज़्यादा लैकिंग थी जो मैंने इंक्लूड किया यहाँ पे। द प्रेस वॉज मोस्टली फॉर ब्रिटिश रीडर्स इन कैलकाटा, एंड दिस वॉज काइंड ऑफ अ ब्रिटिश न्यूज़पेपर था। ये जो हमने ऊपर मेंशन किए वर्ल्ड ट्रेड सारी चीज़ें इंक्लूड करते थे, बट मेन जो फोकस, जो टारगेट ऑडियंस थे, जो टारगेट रीडर्स थे, वो ब्रिटिशर्स थे, क्योंकि वो चाह रहे थे कि ब्रिटिशर्स पढ़े उनके न्यूज़पेपर, राइट? Still, these issues do not take away from the fact that Hickey played a very important role in the birth of India journalism, obviously. Now, journalism after Hickey, यहाँ पे छोटा सा एक टाइमलाइन मैंने यहाँ पे बताया कि हिकी के बाद क्या क्या चीज़ें हुई। 1782 जब उनकी न्यूज़पेपर को शट डाउन कर दिया गया, बाय 1782 आफ्टर जेम्स ऑगस्टस हिकीज बंगाल गैजेट वाज शट डाउन, जर्नलिज्म इन इंडिया डिड नॉट स्टॉप। बाय दिस टाइम देयर वर ऑलरेडी 5 न्यूज़पेपर्स बीइंग पब्लिश्ड फ्रॉम कैलकाटा। ऑलरेडी इनके न्यूज़पेपर तो था ही था, ये पहला न्यूज़पेपर था, बट इनके साथ साथ ऑलरेडी और 5 न्यूज़पेपर इस टाइम पे छपनी शुरू हो चुकी थी, छप चुकी थी। 1785 में क्या हुआ था? बंगाल जर्नल, द बंगाल जर्नल स्टार्टेड इन कैलकाटा 1785 में। इट वॉज अ नॉन गवर्नमेंट न्यूज़पेपर, ये भी नॉन गवर्नमेंट न्यूज़पेपर था। वन ऑफ इट्स एडिटर्स विलियम डुआने, वो अमेरिकन थे, became famous for his bold writing and for being very critical of the British government after Hickey. Because of this, the government sent him back to England. अक्टूबर 1785 में क्या हुआ था? मद्रास कुरियर इंट्रोड्यूस हुआ। द फर्स्ट न्यूज़पेपर इन मद्रास, ये पहला न्यूज़पेपर है मद्रास का, जिसको हम अभी चेन्नई बोलते हैं, वॉज द मद्रास कुरियर, स्टार्टेड बाय रिकार्ड जॉनसन ने इसको स्टार्ट किया था। दिस वॉज अ सिग्निफिकेंट स्टेप फॉर जर्नलिज्म इन साउथ इंडिया। 1789 Bombay Herald the Bombay Herald started in Bombay, now Mumbai. This was the first newspaper in the western part of India. 1790 में Bombay Courier हुआ. Another newspaper called the Bombay Courier began. This newspaper later merged with the Times of India. ये newspaper बाद में Times of India के साथ merge हुई है, which is still one of India's biggest newspapers today. 1791 मद्रास हरकारू हुआ है लॉन्च। 1791 में मद्रास हरकारू लॉन्च हुआ है। मद्रास हरकारू स्टार्टेड इन मद्रास। इट वॉज कंसिडर्ड अ गुड एफर्ट इन जर्नलिज्म ड्यूरिंग दिस टाइम, ये अच्छा चला, ठीक है। 1791 में ही बॉम्बे गैजेट स्टार्ट हुआ। द बॉम्बे गैजेट ऑल्सो स्टार्टेड इन दिस ईयर, हाउएवर लेटर इट फेस्ड गवर्नमेंट सेंसरशिप बिकॉज ऑफ इट्स कॉन्टेंट, बट इसको सेंसरशिप लागू कर दी गई। 1793 Bombay Gazette and Bombay Herald merged 1793 में. In this year, Bombay Gazette and Bombay Herald were merged.
1795 Madras Gazette हुआ. The Madras Gazette began like some others. It too was later censored by the British government. मतलब आप देख पा रहे हो कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट आप कुछ भी बोल्ड लिखोगे तो ब्रिटिशर्स आपके न्यूज़पेपर को जो था शट डाउन कर दे, बिकॉज उस टाइम पे आपको अप्रूवल ही ईस्ट इंडिया कंपनी से चाहिए थे. वहाँ पे फ्री प्रेस. यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है एक चीज़ कि ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड देयर वाज नो फ्री प्रेस. ओपनली आप जो है प्रेस को जो है सेंसरशिप लगा रहे हो, उस पर आप उसको मना कर रहे हो, आप जो है जो एडिटर्स हैं उनको आप डिटेन कर रहे हो, ये सारी चीज़ें जो आप कर रहे हो एज अ गवर्नमेंट, तब तक फ्री प्रेस नहीं आया था. By the 1800, there were already 15 newspapers being published from India. All of these were English newspapers. अब ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. By 1800 तक वर्नाक्यूलर प्रेस अब तक नहीं आया था. सारे न्यूज़पेपर्स जो थे वो आपके इंग्लिश न्यूज़पेपर्स थे. None of them were in Indian languages yet. अब समरी क्या है इस टाइम लाइन की? बिफोर 70-80 का टाइम पीरियड, अर्ली न्यूज़ शेयरिंग. हरकरास हैंड रिटन न्यूज लेटर जो हमने सबसे पहले पढ़ा है, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यूज करती थी, यूज बाय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ड्यूरिंग मुगल एरा फॉर इंटरनल कम्युनिकेशन. नो प्रिंटेड न्यूज़पेपर्स येट. 1550 से 1779 में क्या हुआ? बिगनिंग्स ऑफ प्रिंटिंग इन इंडिया. 1550 में फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस ब्रॉट टू गोवा बाय पोर्टुगीज मिशनरीज. 1557 में फर्स्ट मलयालम बुक प्रिंटेड बाय जेसट्स ऑफ गॉड. 1578 में फर्स्ट तमिल बुक थाम्बिरन वनक्कम प्रिंटेड एट क्विलोन विच इज कोल्लाम टुडे. 1579 में टाइप्स डेवलप फ्रॉम तमिल एंड मलयालम. प्रिंटिंग फोकस्ड ऑन रिलीजियस कंटेंट बाय मिशनरीज, जो कि हम पढ़ चुके हैं. नाउ 1782 में क्या हुआ? birth of Indian journalism. 1776 William Bowles attempt to start newspaper in Calcutta failed. 1780 में James Augustus Hickey's Bengal Gazette, India's first English newspaper. 1782 में Hickey's newspaper shut down after government action. Now 1782 से 1800 के टाइम पीरियड में क्या हुआ? growth of early newspapers, English language newspapers only. 1785 में बंगाल जर्नल विलियम डुआ ने डिपोर्टेड फॉर क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट, मतलब इनको वापस इंग्लैंड भेज दिया गया था, जो हमने पढ़ा है. 1785 के अक्टूबर में मद्रास कुरियर, फर्स्ट न्यूज़पेपर इन मद्रास. 1789 में बॉम्बे हेराल्ड. 1790 में बॉम्बे कुरियर, लेटर मर्ज्ड विद द टाइम्स ऑफ इंडिया. 1791 में मद्रास हरकरू, गुड एफर्ट इन मद्रास जर्नलिज्म. 1791 में ही बॉम्बे गैजेट फेस्ड सेंसरशिप. 1793 में बॉम्बे गैजेट एंड बॉम्बे हेराल्ड मर्ज्ड. 1795 में मद्रास गैजेट censored. Later, by 1800, 15 newspapers published across India. Now, what is the conclusion? The history of early journalism in India shows how the press slowly grew from handwritten newsletters like Harkaras to printed newspapers like Hickey's Bengal Gazette. Although the first newspapers were mostly controlled by the British and written in English, they laid the foundation for journalism in India. James Augustus Hickey is remembered as the pioneer who brought boldness and honesty to Indian journalism. Obviously, उनका जो motive था वो truth and facts पे based था, objectivity and impartial न्यूज़ या इवेंट्स को, impartial message को जो है communicate करना. Even though his newspaper was short-lived, and after him many more newspapers started in different cities like Calcutta, Bombay and Madras, जो metropolitan cities है आज के टाइम में. In the beginning, these newspapers mostly served the British community, but they opened the door for the future growth of journalism in India. Later, Indian-owned newspapers and the vernacular press helped journalism reach the common people and became an important part of India's journey towards freedom and social challenge. Okay, so this was for today. So जैसे प्रेस बनी, प्रेस के बाद जैसे जैसे फर्स्ट न्यूज़पेपर इंट्रोड्यूस हो, ऑल द थिंग्स आई हैव ट्राइड टू डिस्कस इन दिस लेक्चर. आई होप दिस लेक्चर वॉज लिटिल बिट हेल्पफुल फॉर यू. इफ दैट्स सो, प्लीज डू like and subscribe to my channel, and after subscribing do hit the press button so that every new notifications get tapped into your phone. And do share in the comment section next video you want from me, what new chapter you want from me to explain you regarding journalism. Thank you.